Okay, students, we are starting the past paper of series. In the series, we have two types of question. So we are doing the first type today, and that type is the questions of progressions, right? Not the questions of expansion. क्योंकि सीरीज में हमारे पास प्रोग्रेशन भी है एक्सपेंशन भी है तो प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस पहले हम सॉल्व कर रहे हैं दैट्स व्हाई दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर पास्ट पेपर 5 is from May June 17 paper 1-1 in the first part. Now stop working. In the first part, an arithmetic progression, it is given already. पहले से ही आपको बता दिया गया. The progression is arithmetic. The progression is arithmetic. So we have to use all the formula of arithmetic progression, right? Has a first term 32. First term means A, 32, right? Fifth term 22. Can I say that T5 is 22? And the last term, can I say that Tn is minus 28? Isn't it? कल हमने डिस्कस किया था what is the last term? The last term is Tn, which is minus 28, right? We have to calculate, find the sum of all the terms in the progression. We don't know about how many terms we have in the progression. So it means, first of all, we have to calculate the value of n, that how many terms we have in the progression. So how can we calculate the value of n? A is 32, T5, and it is fifth term of arithmetic progression. And T5 को हम लिख सकते हैं A plus 4D equals to 22. A plus 4D equals to 22. कल हमने जनरल सीक्वेंस जो बनाई थी आखिर में उसमें देखा था कि if we have to write T5 then it will be A plus 4D. अगर T6 होगा तो A plus 5D. T10 होगा तो A plus 9D and so on, right? So now, अब आप देखिए the value of A is 32 plus 4D equals to 22 and 4D equals to 22 minus 32 minus 10 and the value of D is minus 5 over 2. Any confusion? No. D आ गया, A आ गया, लेकिन अभी तक N नहीं आया. How to calculate N? We have a formula for Tn, A plus N minus 1 into D equals to minus 28. What is the value of A? The value of A is 32 plus N minus 1 and the common difference is minus 5 over 2 equals to minus 28. So now N minus 1, here it is minus 5 over 2 equals to 60 with minus sign. 5 12s are 60. So N minus 1 equals to 24 and the value of N is 25. Pata chala, we have 25 terms in the progression and we have to calculate sum of the first 25 terms. So now we have to use the formula of sum. Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. S 25 चाहिए हमें equals to 25 divided by 2. 2a, the value of a is 32. The value of n is 25 minus 1 and the common difference is minus 5 over 2. Calculator से solve किया जाएगा. The answer will be 50. The answer will be 50. This is the sum of the first 25 terms of the expression. Are you clear? Any confusion? अब रुक जाइए. Now, what we have in the B part. अब सुनिए, फर्स्ट पार्ट में तो पहले ही इन्होंने बता दिया था द प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक. सेकेंड पार्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक हो गया? जब ऐसा हो तो हमें चेक करना पड़ेगा whether the progression is arithmetic or geometric. Whether the progression is arithmetic or geometric. अब सुनिएगा how to check. बच्चों, स्ट्रेट लाइन अगर मुझे बनानी हो तो मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए?
2 पॉइंट साइन। इसी तरह हर चीज के लिए कोई ना कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें प्रोग्रेशन को चेक करना हो वेदर द प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, तो मिनिमम 3 टर्म्स निकालनी पड़ती। कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स। 2 टर्म के ऊपर काम नहीं हो, मिनिमम 3 टर्म्स। चलिए अब टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। आप क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। Each year, a school allocates a sum of money for the library. The amount allocated each year is increases by 2.5%. In 2005, the school allocated $2,000. Find the total amount allocated from 2005 to 2014. फर्स्ट टर्म क्या दे दी गई? पहले साल कितनी अमाउंट गई? 2000। दिस इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट ईयर कितनी अमाउंट दी? 2000। दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड ईयर कितनी अमाउंट होगी? इसको इंक्रीज कर दें 2.5%। अगर 2.5% इसको इंक्रीज कर देते हैं तो 2000 का 2.5% होता है 50। 2000 में ऐड कर दीजिए तो आंसर क्या आया? 2050। इंक्रीज अमाउंट आ गई। अब 2050 का 2.5% निकालें। 2050 का 2.5% निकालें और इसको 2050 में ऐड कर दें, क्या आंसर आ रहा है? 2101.25। 0.25। ठीक हो गया, 3 टर्म्स आ गए। अब हम चेक करेंगे वेदर द प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। वेदर द प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। सुनिएगा, अगर मैं 2050 में से माइनस करता हूं 2000, आंसर क्या आएगा? 50। 2101.25 माइनस 2050, द आंसर इज नॉट 50। पता चला सब्ट्रैक्शन से तो इक्वल नहीं हो रहा, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब हम कॉमन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। 2050 डिवाइडेड बाय 2000 विल बी 1.025। The third term divided by second term will be 1.025. कॉमन रेशियो सेम आ गया। पता ये चला ये क्या बनी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बनी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हमें कैलकुलेट करना है, देखिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? सब लोग बताइए। 2000। व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? 1.025। हमें सम चाहिए, टोटल अमाउंट। सम चाहिए कितनी टर्म्स का? 2005 से 2014 तक। 2005 टू 2015 कितने साल हो गए? 5 to 14। How many years? How many years? How many years? 10 years? Because क्या लिखा हुआ है? इंक्लूसिव। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। राइट? 10 years हो गए, तो n क्या हो गया? 10। वी हैव टू फाइंड S10। क्या फॉर्मूला है? a r की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। आंसर बताइए। द आंसर इज 22407। दिस इज द टोटल सम। दिस इज द टोटल सम of 10 years. Are you clear? Any confusion? Now, students, question number 4. What we have in this question number 4, the first 2 terms of arithmetic progression फिर बता दिया। The progression is arithmetic, there is no need to check। कोई चेकिंग की जरूरत नहीं, राइट? अब आइए, पहली 2 टर्म्स क्या दे दी गई? 16 and 24 and so on। कहा गया फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन एट विच द सम एक्सीड 20,000। सम 20,000 से ज्यादा हो जाए, और हम कंसीडर कर रहे हैं सम क्या हो जाए? 20,000 हो जाए। हम एक्सीड पे नहीं जा रहे, हम कंसीडर कर रहे हैं सम हो जाए इक्वल टू 20,000। तो हमें वो n निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आंसर आया 11। फॉर एग्जाम्पल आंसर आया 11 कि 11 टर्म्स का सम 20,000 हो गया, तो एक्सीड कहां पर हो जाएगा? 12 पर। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 12। फॉर एग्जाम्पल आंसर आया 50। 20,000 का सम कहां पर हो गया? 50 पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 51। ये अगली टर्म और ऐड कर दें तो एक्सीड कर जाएंगे। एक्चुअली एक्सीड में फिर क्या लगता है?
ग्रेटर देन का साइन। इनइक्वालिटी से परेशानी होती है, कंफ्यूजन रहती है, तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हुए सॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट 20,000 सम देखते हैं कितनी वैल्यूज पर होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू, कितना है हमारे पास 20,000, सम होना चाहिए 20,000। एस एन का फॉर्मूला एन बाय टू, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एन, हमें तो फाइंड ही तो एन करना है। एन बाय टू, टू ए इज व्हाट इज ए 16 प्लस n minus 1, what is b, what is common difference, 8, 24 minus 16, it is 8, 2a plus n minus 1 into d equals to 20,000. Any confusion? No. 2 cross multiply, n is here, 16 2s are 32 plus 8n minus 8 equals to 2 cross multiply तो 40,000. Any confusion? आगे n here in the bracket 8n, 32 minus 8, 24 equals to 40,000. 8n square plus 24n minus 40,000 equals to 0. What are the two values of n? The first value is 69.2 and the second value is 72.1 something, I think. Check the values. The first is minus 72.2, minus 72.2. These are the two values. These are the two values. n है क्या? Number of term. n है क्या? तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, इसको कर दिया रिजेक्ट। नंबर ऑफ टर्म या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। पता ये चला एग्जैक्ट 69.2 टर्म्स पर जब हम आएंगे तो सम क्या हो रहा होगा? 20,000। हमें तो इससे एक्सीड करना है ना, हमें तो इससे एक्सीड करना है, तो इट मींस हमें कितनी टर्म्स चाहिए होंगी? 70। Therefore the value of n is 70. Are you clear? Any confusion? Hopefully no, right? और अगर कहते वहां तक नंबर ऑफ टर्म्स निकालें कि सम नियरेस्ट हो 20,000 के, नियरेस्ट हो मतलब 20,000 ना हो, नियरेस्ट हो, तो वो क्या आ जाती? 69। आर यू क्लियर? दैट्स एक्सीलेंट। नाउ इन द बी पार्ट, बी पार्ट से पहले एक चीज डिस्कस कर लें। बिफोर द बी पार्ट आई एम डिस्कसिंग एन एग्जाम्पल हियर। सुनिएगा, 1 2 4, I'm writing a GP. I'm writing a GP. 1 2 4, it's a GP, right? Another GP, 1 4 16. Another GP, 1 8 64. Now सबकी आवाज आए, what is the common ratio of the first GP? 2. The common ratio of the first GP is, formula of common ratio is second term divided by first term. Clear? What is the common ratio of the second GP? What is the common ratio of the third GP? आ रही है बात समझ? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। सुनिएगा, अब ये जो फर्स्ट जीपी है ना, लेट्स से दिस इज द बेसिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच आई मेड, जिसका कॉमन रेशियो आया 2। मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हर टर्म को स्क्वायर कर दिया, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, तो कॉमन रेशियो क्या आया? 4। कॉमन रेशियो क्या हुआ? इसका स्क्वायर हो गया बेसिक कॉमन रेशियो। थर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने हर टर्म का क्यूब कर दिया, तो कॉमन रेशियो का भी क्या हो गया? क्यूब हो गया। तो पता ये चला जो पावर के अकॉर्डिंगली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चेंजेस आते हैं, वही सेम चेंज कॉमन रेशियो में भी आ जाता है। वही सेम चेंज कॉमन रेशियो, अगर स्क्वायर किया सारी टर्म्स को तो कॉमन रेशियो का भी स्क्वायर कर दें। अगर पावर 3 कर दी, पावर 4 कर दी, पावर 5 कर दी, तो कॉमन रेशियो पर भी वही चेंज आ जाएगा। क्लियर? अब सुनिए,
अब now we are starting part B. A geometric progression has a first term 6 and the sum up to infinity is 18. Sum up to infinity is, गौर से देखिएगा, बिल्कुल जो पूछूंगा बताएंगे सब. Sum up to infinity is 18. A new geometric progression is formed by squaring each term. So what is the A of the second progression? 36. Square of 6 is 36. We have to calculate sum up to infinity. We have to calculate sum up to infinity. And the formula is A over 1 minus R. Clear? The value of A is 36, but we don't have the value of R. How can we calculate the value of R? Zara idhar chale. Sum up to infinity आपको दिया हुआ है, A over 1 minus R is equals to 18. What is the value of A? 6. So 6 over 18 equals to 1 minus R. So the value of R is 2 over 3. The value of R is, first progression का R 2 over 3 आ गया, तो second progression का R क्या हो जाएगा? 4 over 9 हो जाएगा. स्क्वायर कर दिया ना? क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया. So what is the final answer? 64.8 is the final result for the sum up to infinity of second progression. Are you clear? Clear, everyone? That's excellent. Now, students, question number 6 is from May, June 17, paper 1-3. The first part is the common ratio of geometric progression is R, and the first term of the progression is this, and the sum up to infinity is capital S. Show that capital S is this. We have to prove something. We have to prove the formula. So, what is the formula of sum up to infinity? A over 1 minus R. And sum up to infinity is represented by S. A represented by R square minus 3R plus 2 divided by this is 1 minus R. Common ratio is R only, right? अब सुनिएगा, ऊपर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करेंगे. क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे. सो फैक्टर करते हैं जरा आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से. क्या हो जाएगा? 2R minus R plus 2 divided by 1 minus R. So it will be R common, R minus 2, minus 1 common, R minus 2 divided by 1 minus R. So it will be R minus 2 common. Here it is R minus 1 divided by, अगर minus common ले लिया जाए denominator से तो R minus 1. R minus 1 cancel out. Minus जब multiply होगा तो it will be 2 minus R, which we have to prove. Which we have to prove, right? Of 2 marks. Now, in the second part, find a set possible values of values that S can take. Sum up to infinity can take. बच्चों, sum up to infinity डिपेंड करता है, कल बताया था, R की वैल्यूज पर. अगर कॉम्बिनेशन बिटवीन -1 and 1 होगा, सम अप टू इंफिनिटी पॉसिबल. अगर कॉमन रेशियो बियॉन्ड द वैल्यूज होगा तो सम अप टू इंफिनिटी इज नॉट पॉसिबल. तो अब आप देखिएगा जरा, R होना चाहिए इन बिटवीन -1 and 1, तो सम अप टू इंफिनिटी पॉसिबल है. हमें S की वैल्यूज निकालनी है. किसकी वैल्यूज निकालनी है? S की वैल्यूज. किसकी वैल्यूज निकालनी है? S की वैल्यूज. और S है क्या? 2 minus R के इक्वल. S किसके इक्वल है? 2 minus R. हम इस R को कन्वर्ट करेंगे किसमें? 2 minus R. किसमें कन्वर्ट करेंगे? कैसे कन्वर्जन होगा सुनिएगा. R को कन्वर्ट करना है 2 minus R में, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए होल इनइक्वालिटी को विद -1. किससे कर दें? -1 से. -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? 1. जब भी इनइक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन? अब हमें इसमें क्या ऐड करना है? 2. ऐड कर दीजिए क्या? 2. तो 1 + 2 इज 3. 2 ऐड किया. हियर इट इज 2 - 1 इज 1. अरे ये बात समझ में बन गया. 2 - R. और 2 - R किसके इक्वल है? S के इक्वल. तो पता ये चला S किसके दरमियान होना चाहिए? 1 और 3 के दरमियान.
इनइक्वालिटी लिखते वक्त आपको हमेशा बताया है लेफ्ट साइड पर छोटी वैल्यू, राइट साइड पर बड़ी वैल्यू आती है, तो अरेंज करके फॉर्मेट में लिख लीजिए। in between 1 and 3, these are the values of S, these are the set possible values of S जिस पर ये क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा। Now, what is in this question? Question number 9 is from February, March 16, paper 1-2. The 12th term of, again, arithmetic progression. पहले से ही बता दिया। Its 12th term, T12, किसके इक्वल है? 17. और S31 किसके इक्वल है? 1023. 12th term, n की वैल्यू मालूम है हमें 12, n की वैल्यू मालूम है हमें 12, हमें कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड आउट T31 मालूम करना है हमें। T31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 30d। हमें a प्लस 30d कैलकुलेट करना। वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ a, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ d। पहले ये वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। आइए जरा इस पर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? a प्लस 12 माइनस 1 d इक्वल टू 17, a प्लस 11d इक्वल टू 17। जिसको याद हो वो डायरेक्ट लिख ले a प्लस 11d, जिसको याद ना हो फॉर्मूला में n रखकर जनरेट कर ले आप। ठीक हो गया? Here S31, it will be n by 2, 2a plus n minus 1 into d equals to Mr. Z 1023. Now 1023 divided by 31, what is the answer? Check कीजिए। 1023 divided by 31, multiply by 2 is 66, right? So 2a plus 30d equals to 66. Any confusion? Now, can I say that a plus 15d equals to 33? 2 से divide कर दिया पूरी equation को। The value of a from this will be 33 minus 15d. First equation में रख रहे हैं जनाब 33 minus 15d plus 11d equals to 17. Now, minus 15 plus 11 कितना हो गया? Minus 4d equals to 17 minus 33 minus 16. The value of d is 4. And what is the value of a? Minus 27. Minus 27. Now, the a is minus 27 plus 30. The d is 4. What is the answer? 93 is the final result. Are you clear? Any confusion? Hopefully no. The question of 5 marks. Here, question number 11 from May, June 16, paper 1-1. In the first part, the first term of GP is 50. And the third term, T3, is 32. Third term का formula GP का क्या होता है? A R power n minus 1 equals to 32. A कितना है? 50. R power n minus 1. N कितना है? 3 minus 1 equals to 32. So R squared equals to 32 divided by 50. What is 32 divided by 50? 16 upon 25. So the value of R is 4 upon 5. क्या लिखा हुआ है? All the terms are positive. इस वजह से R भी पॉजिटिव होगा। अगर लिखा हुआ होता all the terms are negative, तो R को नेगेटिव सिलेक्ट किया जाता, राइट? अब आइए, we have to calculate the sum up to infinity. So sum up to infinity is a over 1 minus R. So what is the answer? 250 is the final result. Are you clear? आ रही है बात समझ में? Any confusion? Clear बेटा? आगे देखिएगा सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं। देखिए जनाब, इसमें द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी पहले ही बता दिया, प्रोग्रेशन एपी है। स्टॉप वर्किंग, जस्ट लुक एट द बोर्ड, शो दैट 10x equals to this. The first
three terms, it means it is T1, it is T2, and it is 3T, T3. If the terms are of arithmetic progression, तो हमें मालूम है arithmetic progression में क्या होता है जनाब, T2 माइनस T1 किसके इक्वल होता है, T3 माइनस T2. द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम. इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इन दोनों के डिफरेंस. ऐसा ही है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है. और कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड. तो हमने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड. आ रही है बात समझ में. व्हाट इज द सेकंड टर्म, 3 cos x. What is the first term, 2 sin x. What is the third term, sin x plus 2 cos x. हमें इक्वेशन जनरेट करनी थी, हमने कॉमन डिफरेंस की हेल्प से इक्वेशन जनरेट कर ली. एंड व्हाट इज T2, 3 cos x. जनाब -2 sin x को अगर मैं राइट साइड पर ले जाऊं तो यहां पर sin x पहले भी लिखा हुआ है, 2 sin x प्लस sin x कितना हो गया, 3 sin x. लेफ्ट साइड पर 3 cos x है, राइट साइड पर क्या है, 2 cos x माइनस 3 cos x माइनस cos x. जब ये लेफ्ट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 cos x. अब आइए sin x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन cos x को नीचे लेकर आ जाएं, 3 को इधर ले जाएं, 4/3. पता ये चला क्या हो गया, tan x इक्वल्स टू 4/3, which we have to prove. Clear? Find the sum of the first 20 terms. 20 terms का sum calculate करना है हमें. Find the sum of the first 20 terms. यहां पर इन्होंने क्या कहा, where x is acute angle. Where x is acute angle. हम एंगल भी निकाल लेते हैं जरा साथ में. तो x क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 4/3. एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, बेसिक एंगल. कितना है जरा बताइएगा, कितना, किसी में भी कर लें. आपने बताया रेडियंस में, आप डिग्रीज में बताएं. 53.1. चलें डिग्रीज में अगर वर्किंग कर लें तो 53.1 लिख दिया हमने. कोई कंफ्यूजन. और रेडियंस में अगर काम करना है तो रेडियंस में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आइए हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स. सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स. क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, x की जगह 53.1 रखते हुए फर्स्ट टर्म क्या जनरेट होगी, 2 sin 53.1. 1 सेकेंड टर्म क्या जनरेट होगी, 2.39. और पहली टर्म क्या है, 1.6. फिनिश, कंप्लीट आंसर 1.6 है. 1.59, 1.6 ठीक हो गया. एंड सो ऑन. इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहले से गिवन है. इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहले से गिवन है. हमें कैलकुलेट, सॉरी, इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले से गिवन है. वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स. सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S20 इक्वल टू n/2 इक्वल टू n/2. 2a, a अगर मैं 1.62a plus n-1, and the common difference is this minus this, 0.8. आंसर बताइए, 770. The answer is 70. First 20 terms का आंसर 70 आ गया. Okay, students, there is a mistake in the second term. The second term, and then the mistake is in difference. What is the second term? 1.8. What is the difference now? 0.2. Therefore, the answer is 70. Right? Now,
Question number 13. It's of May June 16, paper 1-2. A water tank holds 2000 liter when full. A small hole is in the base, gradually getting bigger so that each day a greater amount of water is lost. वाटर टैंक में जो होल है वो ऐसा ऐसा बढ़ रहा है जिसकी वजह से पानी ज्यादा लॉस कर रहा है वाटर टैंक, राइट? On the first day after filling, 10 liter of the water are lost and this increased by 2 liter each day. हर दिन 2 लीटर बढ़ता जाएगा. ठीक हो गया? How many liter will be lost on 30th day after filling? सुनिएगा सुनिएगा अब सुनिए. 30th डे आफ्टर फिलिंग कितना वाटर लूज कर जाएगा वाटर टैंक? पहले दिन कितना वाटर लूज किया? पहले दिन कितना वाटर लूज किया? 10. नेक्स्ट डे कितना वाटर लूज होगा? नेक्स्ट डे कितना वाटर लूज होगा? 14 एंड सो ऑन. चेक कीजिए. इट्स एन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक. अरिथमेटिक 2 का डिफरेंस चल रहा है. हमें क्या चाहिए? 30th डे पर चाहिए हमें, राइट? सो इट मींस T30 equals to A plus n minus 1 and the common difference is 12 minus 10 is 2. What is the answer? 48. 30th डे को 48 लीटर वाटर लूज कर जाएगा. 68 लीटर वाटर लूज कर जाएगा. ठीक हो गया उस्मान साहब? Now, second part. The tank becomes empty during nth day after filling. Find the value of it. Empty हो जाए जब टैंक, क्या मतलब? जब सम करते जाएं, पहले दिन 10 लीटर 2000 में से लूज किया, नेक्स्ट डे 12 लीटर, नेक्स्ट डे 14 लीटर. आप क्या बता सकते हैं 2 दिन में कितना लीटर लूज किया हमने? 3 दिन में कितना लीटर लूज किया? एंड सो ऑन. पता ये चला हमें वो सम निकालना है कि जब हम 2000 लीटर लूज कर जाए. बात समझ में आ रही? तो सम की वैल्यू 2000. चलते हैं जनाब n/2. 2a कितना है? 10 प्लस n minus 1 and the common difference is 2 equals to 2000. So cross multiplication 20 plus 2n minus 2 equals to 4000. 2n squared 20 minus 2 is 18 plus 18n minus 4000 equals to 0. What is the value of n? 40.45 and second minus 49.45. नेगेटिव वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई. Therefore the value of n, बच्चों 40 days और फिर अगला दिन स्टार्ट हो गया, मतलब 41st डे पर हम पूरा 2000 लीटर लूज कर जाएंगे. आ रही है बात समझ? 40.1 भी होता, 40.01 भी होता तो अगले दिन में एंटर हो जाते. आ रही है बात समझ? ये राउंड ऑफ नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअली हमने लिखा है 41st. क्लियर? अब आइए आगे. इन द सेकेंड पार्ट assume state that 10 liter of water are lost on the first day and that amount of water loss increased by 10% each day. Find what percentage of original 2000 liter is left in the tank after the end of 30th day. Okay. अब यहां पर वाटर लॉस जो है वो 2 लीटर पर डे नहीं है.
अब 10% बढ़ रहा है पर डे, ऐसा ही है। Assume instead that 10 liter of water are lost on the first day. पहले दिन 10 लीटर, 10 का 10% क्या हुआ? 1। तो जनाब अगले दिन कितने परसेंट हुआ? 11। 11 का 10% क्या हुआ? 1.1। 11 का 10% क्या हुआ? 1.1। क्या आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू बताइए? इसको इंक्रीज कीजिए 10% बेटा, 11 को 12.1 एंड सो ऑन। 3 टर्म्स निकाल ली हमने। अब जरा हम चेक करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक है? 11 minus 10 1, 12 minus 1 minus 11 is not 1, तो अरिथमेटिक तो होगी नहीं। कॉमन रेशियो चेक करें, 1.1, फिर चेक कीजिए 1.1, पता ये चला रेशियो सेम आया, पता ये चला रेशियो सेम आया, तो इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 30th डे पर हमें चाहिए कितना वाटर रह गया, 30th डे पर चाहिए हमें कितना वाटर रह गया, और फिर उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी आउट ऑफ 2000। तो 30th डे तक जरा चेक करते हैं कितना वाटर लूज कर गए। फॉर्मूला लगाया, SN इक्वल टू AR⁻n-1 ओवर R-1 S30। ए कितना है? 10। कॉमन रेशियो क्या है? 1.1 की पावर 30। यूज योर कैलकुलेटर्स। -1 डिवाइडेड बाय R-1, 1.1 -1। आंसर बताइएगा S30 का क्या आया? 1645। 1645 लीटर लूज कर गए। आपसे क्या पूछा गया? फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल 2000 लीटर लेफ्ट इन द टैंक। तो कैसे परसेंटेज निकलेगी जनाब? 2000 माइनस 1645, इतना वाटर रह गया टैंक में, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल, मल्टीप्लाई बाय 100%। व्हाट इज द आंसर? 17.75, 17.6% वाटर रह गया। आ रही है बात समझ में? क्या था? 17.7। ओके, 17.8। द फाइनल आंसर इज 17.8। क्लियर?